Let's start with disaccharides. Okay, so I need black dye, disaccharides. ओके, डाइसैचराइड्स का मतलब क्या होता है? डाइसैचराइड्स का मतलब है कि जिसको हम हाइड्रोलाइज करें, ओके, ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन hydrolysis, okay, give to monosaccharide. ओके, जिसको हाइड्रोलाइज करने पे हमें दो मोनोसैचराइड्स मिले उसको हम बोलते हैं डाई सैचराइड्स. ओके, तो डाइसैचराइड्स क्या होते हैं? ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अस monosaccharides. Okay, now we'll take example. Okay, we'll take example. क्या एग्जाम्पल होगी? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज आवर शुगर. ओके, टेबल शुगर. व्हेन यू विल ऐड वाटर, ओके, इट विल गिव अस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. तो अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज तो आपका सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमें दो मिलते हैं. ओके, फ्रुक्टोज. अगर हमारे पास माल्टोज हो, ओके, अगर हमारे पास, एक मिनट बेटा, जस्ट मिनट. सो मैंने दो एग्जांपल बताई थी, माल्टोज एंड लैक्टोज. माल्टोज हमें दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के देता है और लैक्टोज हमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है. ओके, इन डाइसैचराइड्स द लिंकेज इन विच, अब दो मॉलिक्यूल है, राइट, एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है, क्योंकि है तो ये एक तरह से डाइमर ही ना. तो दे बोथ आर लिंक्ड, है ना. If they both are linked, so what you call this linkage? What you call this linkage? So basically this linkage is known as, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट. नहीं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. हाँ जी बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद है? हाँ जी. इट इज ऑफ टू टाइप, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्लियर? इफ इट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, देन वी हैव अ फर्स्ट मॉलिक्यूल, डायरेक्ट सेकंड मॉलिक्यूल, ओके, एंड द 2OH is on same side. The 2H is on same side, so usually we'll call it alpha glycosidic linkage. Okay, if we have oxygen in between and the 2H is on opposite side, so we will call it as a beta glycosidic linkage. ठीक है, तो आपने इन H से पहचानना है. तो दो H अगर सेम साइड पे होंगे तो आपने उसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ना है. अगर दो H आपके अपोजिट साइड पे होंगे, मतलब एक दूसरे के एंटी होंगे, तो आपने उसको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ना है. ठीक है जी. नाउ लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, है ना, बिकॉज स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. पेपर में कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की. ओके,
So I'm going to clear it. Now I'm just going to draw the structure. ओके हमने देखा था कि रिंग बन गई थी एक, राइट? जब स्ट्रक्चर क्लोज हुआ था अल्फा बीटा तो एक रिंग बन गई थी। तो CH2OH यहां पे H था, ये था, और इसमें ये H था और ये OH था। सिमिलरली हियर ऑल्सो ये OH है और ये H है। क्लियर? प्लस O, okay, and again this is H, this is OH, this is same, OH is on same side, okay, OH is on same side, and this is our H, this is our CH2OH. Now what will happen? Now water will leave from this reaction, okay, water will leave from this reaction, and ultimately what we will get, okay, this linked with this, okay, so, and here is CH2OH, here is CH2OH, and here is H, and here is OH. But see, you can see that what is happening here, that is important. क्या हो रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे देखोगे कि ये दो OH सेम साइड पे थे, तो जो दो H हैं that will be on same side, that will be on same side, so we will call it as a alpha glyco GLYCO CYDIC, glycosidic linkage. Okay, now I'm just drawing another molecule where there is a little change in the structure, okay, where there is a little change in the structure. So here is H, OH, CH2OH, H, here is H, OH. We don't have any change in this structure, but what will happen in the another molecule? What will happen in the another molecule? It is CH2OH, it is H. Now it is changed. It is changed now. Okay. Then what is the difference if it is changed now? Okay. So the removal of water takes place from this side. Here is the removal of water, and the two H are opposite to each other. Okay. The two H are opposite to each other. Okay. If the two H are opposite to each other, then what is this? Is 1H. So usually we will draw it like this, okay, and here is the molecule and here is another H. So this is H, this is OH, this is H, this is OH, right? And all other things also remain same, and there is no change in the molecule structure. So what is the change? The change is only that the 2H is now opposite to each other. If the 2H is in the same direction,
we will call it a alpha glycosidic linkage. But if the 2H is in the opposite side, we will call it as a beta glycosidic acidic linkage. ओके, तो ये देख के आपने पहचान लेना है कि आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया है या अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया है या बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया है. सिंपल सी बात है, यू हैव वन शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, वट एवर यू वांट टू से, यू हैव अनदर मोनोसैकेराइड. दोनों ऑक्सीजन से तो जुड़े होंगे. ओके, सिंस दे आर ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, we will call it as a glycosidic linkage. ओके, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इफ द 2H is on same side, we will call it as a alpha glycosidic linkage. If the 2H is on the opposite side, we will call it as a beta glycosidic linkage. ओके बेटा, एंड हमारी बॉडी जो है वो कौन से लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर सकती है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि हमारी बॉडी कौन से उसको डाइजेस्ट कर सकती है. तो आंसर इज हमारी बॉडी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर सकती है. हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओके, दे ऑल आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग. हाइड्रोलाइज कर रहे हैं ना, ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, है ना, द अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसलिए बेटा हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेते हैं. बट अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, they are not capable of digesting this beta glycosidic linkage. Okay, so this is more important कि हम लोग सेल्यूलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, क्योंकि सेल्यूलोज हैव द बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके, एंड हमारी बॉडी जो होती है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाती है. ओके, so that's all about this topic. Next topic is invert sugar. I'm going to rub this. Okay, invert sugar is another very important topic when you are talking about this carbohydrate. Okay, invert sugar. Okay, what is invert sugar? Invert sugar simply means, मैंने आपको पहले बताया था, आप प्लस एक मॉलिक्यूल लो, आप प्लस सुक्रोज ले लो बेटा. ओके, टेबल शुगर प्लस सुक्रोज लो, उसके अंदर पानी डाल दो प्लस वाटर. ये प्लस दूसरा है, ये प्लस सिंपल रिएक्शन वाला है. ये प्लस है कि इस ये ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है. ओके, तो ये जब ब्रेक होगा, ठीक है बेटा, तो ये ब्रेक होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में. ठीक है, अगर तो ग्लूकोज प्लस है तो फ्रुक्टोज क्या होगा? माइनस होगा. ठीक है, अगर फ्रुक्टोज प्लस है तो ग्लूकोज माइनस होगा. यानी आप प्लस को हाइड्रोलाइज कर रहे हो and you are getting one plus and other minus. Okay, you are getting one plus and other minus, so it is called invert sugar. It is called invert sugar. हाँ जी. Okay, so I am writing when plus sucrose, okay, is hydrolyzed with dilute aqueous acids, with dilute aqueous acid,
okay, or by the action of enzyme, or by the action of एंजाइम. हमारी बॉडी में तो एंजाइम ही काम करते हैं ना बेटा सारे, है ना. एंजाइम इन शुगर है तो इन्वर्टेज इज द एंजाइम. ओके, इन्वर्टेज इज द एंजाइम. इट yields equal amount of okay, plus glucose and minus fructose. Okay, so the hydrolysis occurred by the change in specific rotation, occurred by the change in specific rotation, okay, from plus to minus. It is called invert sugar. Okay, it is called invert sugar. It is called invert sugar. Okay, so if we talked about the sweetness, then invert sugar is 25%, okay, more sweeter than plus sucrose. So it is widely used as sweetening agent. In syrups, okay beta, cakes, biscuit, okay, etc. okay, तो ये यहां पे इतने ज्यादा यूज होती है. क्लियर? कहां कहां पे हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया. इट्स नॉट ओनली कि आपके पास ये ही होता है, हमारे पास और ज्यादा डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिसको हम शुगर बोलते हैं. क्यों उन कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं? बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट. ओके, दे आर स्वीट इन टेस्ट. ओके, so I have the different comparison relative to the table sugar. Okay beta, I have different comparison relative to the table sugar. So I am going to write that. So I am writing here sugar, which sugar we are using and their relative sweetness to table sugar. Relative sweetness to table sugar. Okay. So if I am talking about sucrose, then sucrose is 100 times more sweeter.
galactose is 32 times more sweeter. Okay, maltose is again 32 times more sweeter. Lactose is 16 times more sweeter. Okay, fructose is about 173 times more sweeter. Okay, saccharine is about 500 times more sweeter than your stable sugar. Okay, and aspartame right, it is round about 160 times more sweeter than sucrose. Okay beta. And if I'm talking about Manalin, so it is 2000 times than sucrose. It is 2000 times more sweeter than sucrose. Okay beta. So they are the different sugars and their relative sweetness is mentioned so that it will become easy for you. Okay beta, you can note it down. Sometimes paper mein question aa jata hai about them. Okay, but it was rare, not very frequent question. Okay, so next write down, I'm going to rub this, is polysaccharides. Okay, so next is polysaccharides. Polysaccharides. Okay, so polysaccharides are divided into basically two major classes. Okay, number is homo poly, हाँ जी बेटा, और दूसरा क्या होगा? हेट्रो, हाँ जी, हेट्रो पॉली। डिफरेंस बता सकते हो? होमो में एक टाइप के मोनोमर्स, होमो में एक टाइप के मोनोमर्स। एग्जांपल बताओ आप फटाफट। होमो का होगा स्टार्च, हाँ, और सेलुलोज, और सेलुलोज कैसे? हाँ, बीटा ग्लूकोज है ना बेटा उसका, स्टार्च का अल्फा ग्लूकोज है मोनोमर, ठीक है, इसका बीटा ग्लूकोज है। सेम हेट्रो में क्या जाता है बेटा? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रो? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन्स, वेरी गुड। वी हैव अ डिफरेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। हमारे पास डिफरेंट 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं बेटा, है ना? तो उनका सीक्वेंस है। हाँ जी, और गम्स, क्या? गम गम गम, ओके, गम्स, GUMS, ओके, दे आर द, ये भी पॉलीमर होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। तो वी आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। चाहे अब पॉलीमर का क्वेश्चन आएगा, है ना, वेदर यू काउंट इट इन पॉलीमर्स, वेदर यू काउंट इट इन द व्हाट यू कॉल दैट, है जी, हाँ जी। तो इनमें से हमने दो पढ़ने थे बेटा, एक स्टार्च, एक सेल्यूलोज। तो स्टार्च का मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज। कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा एसिडिक लिंकेज।
सेम है ना साइड बेटा? OH। हाँ जी, जहां थाउजेंड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं वाया अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सेल्यूलोज में कौन सा होता है? बीटा बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, और बीटा ग्लूकोज क्या होता है मैंने ये भी बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो कौन सी लिंकेज होती है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या आती है ना, ये मैंने बता दिया। ओके, क्योंकि अल्फा और बीटा में क्या फर्क है? एक OH इसमें राइट साइड पे होता है, वही OH इसमें लेफ्ट साइड पे होता है। ये OH राइट साइड पे है इसलिए दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे रहते हैं, ये OH लेफ्ट साइड पे होता है इसलिए दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपोजिट साइड चले जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है जी? चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। क्लियर है? प्रोटीन्स भी आपने वैसे पढ़े हैं। ओके, जब मैंने आपको पॉलीमर पढ़ाया था तो डिफरेंट टाइप ऑफ के जो अमाइनो एसिड्स हैं they will join together, okay, and form the protein. So next is function of carbohydrates. Function of carbohydrates. Okay, so number one, structural material. Structural material. Okay, so see, like polysaccharides such as cellulose act as a chief structural material, okay, in plants. Okay, तो it like example देता हूं मैं, cellulose is structural material for plants. Okay, हमारा स्ट्रक्चरल मटेरियल कौन सा है? प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? सिर्फ एनर्जी। ओके बेटा, so number 2 is reserved food material. Reserved food material. ओके, सीड्स अगर हम बात करें, ओके, स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना, सो स्टार्च प्रेजेंट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, हाँ जी, स्टार्च इन प्लांट सीड। Okay, starch in plant seeds, okay, present as a reserved food material. Okay beta, number 3, point number 3, as a biofuel, as a fuel, or you can say that biofuel. Okay, so carbohydrates such as ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, है ना, ये चीजें खाते हैं हम सारी बेटा। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा, है ना बेटा, ये सारे क्या है? ये हमें एनर्जी देते हैं। ऐड भी देखते होंगे ना आप, वो बच्चे की एनर्जी नहीं होती, ग्लूकोज पिला देते हैं, एनर्जी आ जाती है उसमें। सो इट विल एक्ट एज अ बायोफ्यूल। ओके बेटा, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसलिए इनको हम फ्यूल भी बोल देते हैं। नंबर 4, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ओके बेटा, सी बेटा, चाहे आपके पास मैं आरएनए की बात करता हूं और चाहे मैं डीएनए की बात करता हूं,
चाहे मैं आरएनए की बात करता हूं, चाहे मैं डीएनए की बात करता हूं, होता क्या है, एक फॉस्फेट यूनिट होती है जिसके साथ एक शुगर जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद फिर फॉस्फेट होता है, फिर शुगर जुड़ा होता है, एंड सो ऑन। सिमिलर नीचे भी एक फॉस्फेट लिंकेज होती है, फिर शुगर जुड़ा होता है, फिर फॉस्फेट लिंकेज होती है, फिर शुगर जुड़ा होता है, एंड सो ऑन। और हर शुगर के साथ एक बेस लगा होता है। ओके, मैं नाम नहीं बता रहा हूं बेस का, इसके साथ भी एक बेस लगा हुआ है। दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरिन बेस होते हैं, पिरिमिडिन बेस होते हैं। आरएनए में डिफरेंट होते हैं, डीएनए में डिफरेंट होते हैं। ओके, सिमिलर यहां पे भी इस शुगर के साथ भी एक बेस लगा हुआ है और इसके साथ भी एक बेस लगा हुआ है। अब ये बेस पेयर जितने भी होते हैं, हम इसको बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर ए टी एंड जी सी बॉन्डिंग होती है और आरएनए के अंदर ए यू जी सी बॉन्डिंग होती है। ये जो मैंने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी एडेनिन एंड थायामीन। अभी मैं करवाऊंगा अभी आपको आगे। एडेनिन एंड थायामीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा। ओके, ग्वेनिन एंड साइटोसिन जीसी, ग्वेनिन एंड साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बनते हैं, तो एयू एटीजीसी। तो दिस इज फॉर डीएनए, ठीक है। तो इन बेस के बीच में क्या हो जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इन बेसिस के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, चाहे डिपेंडिंग अपॉन बेस पेयर हम कौन सा ले रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो यहां पे हमारी जो शुगर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुगर, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, या तो राइबोज शुगर होगी या डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। ओके, अगर राइबोज होगी तो आरएनए, डीऑक्सी राइबोज होगी तो डीएनए आप उसको बोलते हो। दैट मीन दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन व्हिच शुगर यू आर यूजिंग। If we will talk about the sugar, then we will automatically talk about carbohydrates. Okay, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके बेटा, सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. Okay, if we talked about point number 5, then in adenosine triphosphate, in AD, adenosine triphosphate. Okay, so ATP. Okay, एटीपी हमारी को एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी बैंक है। ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी हमारे पास राइबोज शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो राइबोज शुगर है और शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, राइबोज एक शुगर है और शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेटेड ओवर, ओके, proteins. Okay, so basically proteins are essential, okay, substance, okay, for the growth and maintenance of life, for the growth and maintenance of life. Okay, so basically polymers are polymers,
sorry, proteins are polymers, okay, and having monomer unit called amino acid, alpha amino acid, okay. Why we will call it as a alpha amino acid? That means एक एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा होता है उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, इसलिए अल्फा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया? अमीनो ग्रुप आ गया। NH2 को हम क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप बोलते हैं बेटा। यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, एक R ग्रुप होता है, ओके। यहां पे एक अमीन होता है, उसमें क्या होता है? R ग्रुप होता है, ओके। एंड दिस R ग्रुप इज डिफरेंट, और बाकी के 3 जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ओके। बट यहां पे हम एक चीज देखें, सिंस all the 4 bonds attached to alpha carbon are different, है ना? are different, so such carbon is called chiral carbon. Carbon is called chiral carbon, okay beta, and it is optically active, and it is optically active, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? सारे के सारे अमीनो एसिड क्या हो गए हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं। सारे के सारे अमीनो एसिड क्या हो गए हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं, ओके। सो वी नो दैट देयर आर 20 अमीनो एसिड, ओके। देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड्स। तो आउट ऑफ दैट 20 अमीनो एसिड 10 आर essential and 10 are non essential, okay. So this 10 essential we have to taken from outside, यानी हम जो रूटीन फूड खाते हैं, जो रूटीन डाइट खाते हैं, उनके अंदर ये 10 अमीनो एसिड हमने लेने होते हैं उस फूड या उस डाइट से। और इस 10 जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हैं, इट डजंट मीन कि इसकी हमें जरूरत नहीं होती, ओके। इट प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन बॉडी, ओके। तो ये हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेती है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलो, अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, डी अमीनो एसिड एंड एल अमीनो एसिड। तो डी अमीनो एसिड कौन से होते हैं एंड एल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? तो दिस इज COOH और नीचे आ गया मेरे पास R। अगर तो मेरा NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, ठीक है, तो आई विल कॉल इट एज अ डी अमीनो एसिड, ओके बेटा। हाँ, इसी केस के अंदर अगर मेरा COORH NH2 ग्रुप मेरा लेफ्ट में है, आई विल कॉल इट एज अ L अमीनो एसिड, ओके।
I will call it as a L-amino acid. ठीक है, इसमें से मैं एक कंपाउंड बताता हूं आपको, दैट इज ग्लाइसिन. ओके, मैं ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, COOH NH2H, और यहां मैं R लगाता हूं. बट ग्लाइसिन के केस में जो R है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है. ठीक है, इसका मतलब है ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम. ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम. तो टोटल आपके पास 19 अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हैं एंड एक अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, उसमें से 19 ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है. जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्लाइसिन. ओके, Next is only cysteine. Okay, cysteine is the amino acid which contain sulfur in its bonding, which contain sulfur, which contain sulfur. Okay, so what is the structure of cysteine? So we know that COOH तो जरूर होगा, इसमें NH2 भी जरूर होगा, एक हाइड्रोजन भी जरूर होगा और दूसरा होगा CH2SH. Okay, so this amino acid is called cysteine. Okay, now the second most important definition in the this chapter, okay, and that is Zwitter ion. ZWITTER, okay, Zwitter ion. Okay, so please mark it very, very, very important. Okay, this Zwitter ion definition is very, very important. Okay, it may be defined as the, it may be defined as the, okay, as the molecule have, okay, it may be defined as the molecules which have both cationic and anionic end. ओके, तो सिंपल मीन्स हमने पहले भी कितनी बार पढ़ी है ये बात. ओके, कि एक मॉलिक्यूल होता है या तो उस पर कैटायन होता है या वो अनायन होता है, दोनों चार्ज नहीं होते. ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों चार्ज नहीं होंगे इकट्ठे. ओके, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, मतलब को एग्जिस्ट करें, पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करे और नेगेटिव भी एग्जिस्ट करे. ओके, तो ऐसे से मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे ज़्विटर आयन. ओके, इकट्ठे नहीं होने चाहिए, एक या दो बॉन्ड के डिफरेंस पे होंगे तो भी चलेगा. फॉर एग्जांपल यहां पे है मेरे पास COOH, ये एक एसिड ग्रुप है, और इधर है मेरे पास NH2, ये एक बेस है क्योंकि लोन पेयर है. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे R है. तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि आपका जो एसिड है
आपका जो एसिड ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयन दे। अब ये H पॉजिटिव बेस क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयन ले, तो पॉजिटिव इसको ये बेस ले लेता है। ओके, तो यहां पे देखो कि आपके पास इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक अनायन पार्ट भी आ गया और इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक केटायन पार्ट भी आ गया। ओके, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अनायन पार्ट का भी एग्जिस्ट करना और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन पार्ट का भी एग्जिस्ट करना, इसको ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयंस को हम लोग बोलते हैं ज्वीटर आयंस। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन, ZWITTER। ओके, ज्वीटर आयंस। ओके बेटा, so now I am going to rub this and see what will happen. What will happen? I am just rubbing it. Okay, I have a zwitter ion, है ना? zwitter ion का क्या स्ट्रक्चर होता है? एक कैटायन होता है और एक साइड क्या होती है? एनायन होता है। तो दिस इज COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H एंड R। अगर हम जर्नली बात करें तो जर्नली अमीनो एसिड सॉल्यूशन के अंदर एक ज्वीटर आयन की फॉर्म में होते हैं। ओके, जर्नली किस फॉर्म में होते हैं? एक ज्वीटर आयन की फॉर्म में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए से लिए एक ये बना लिया। ओके, आई हैव अ बीकर। ओके, आई हैव अ कंटेनर। कंटेनर में अब ध्यान में रखना, यहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं पीएच, इसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा कर दूं, ओके, ज्यादा करने का मतलब है एडिंग बेस, एडिंग बेस। बेस का मतलब क्या होता है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन को ले जाएगा। ये जो NH3 पॉजिटिव बना हुआ है ना, इससे हाइड्रोजन को ले जाएगा और क्या बनाएगा? NH2 बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सी हाइड्रोजन ले गया ना इससे, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एसिड ने लूज किया था वो OH ने ले लिया, है ना? NH2 तक पहुंचने ही नहीं दिया। ओके, तो ये बन गया COO नेगेटिव। ओके, तो कहने का मतलब है अगर इस सॉल्यूशन में मैं एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं, ओके, और दूसरी तरफ कौन सी इलेक्ट्रोड लगेगी? नेगेटिव। ओके, तो ये कहां मूव करेगा? सो दिस मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव electron. So this move towards positive electron. Clear है? Now what will happen? Now what will happen? Let's take one more case. When the pH is less than 7. When the pH is less than 7. When the pH is less than 7, इसका मतलब है एसिडिक, इसका मतलब है एसिडिक, और एसिडिक का मतलब है बेटा H पॉजिटिव। क्या डाल रहे हैं हम लोग? H पॉजिटिव। ओके, और H पॉजिटिव का मतलब है कि ये तो अपनी जगह पे ठीक है, पॉजिटिव है, एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज R एंड दिस इज COOH। ये नेगेटिव को भी यहां से एक और H पॉजिटिव मिल गया। क्लियर? क्योंकि एसिड ज्यादा है, H पॉजिटिव ज्यादा है,
इसलिए इसको क्या मिल गया, एक H पॉजिटिव मिल गया। तो क्या होगा, when this will get H positive, then what will happen? Okay, so this move towards, so this move towards negative electrode, okay, this move towards negative electrode, okay। तो इस अब एक चीज तो क्लियर हो गई है, अगर pH 7 से ज्यादा होगी हमारा अमीनो एसिड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, अगर pH वैल्यू 7 से कम होगी तो हमारा अमीनो एसिड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने कुछ pH की वैल्यू एडजस्ट करनी है। ओके, हमने pH की वैल्यू एडजस्ट करनी है, सो दैट amino acid do not show any what do you call that, migration, okay, it do not show any migration, okay। हमने एक ऐसी pH रखनी है, ओके, ताकि हमारा अमाइनो एसिड ना तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, ओके। उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके, कोई डाउट? तो अगर आपको डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक point may be defined as a point in the pH range, in the pH range where the Zwitter ion, amino acid मतलब amino acid exists in the Zwitter ion form, तो Zwitter ion show zero movement in the applied electric field, applied electric field, okay। So hope you have understand what I want to say here, okay। तो कहने का मतलब है अगर pH ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो सिर्फ नेगेटिव बचेगा, ओके। तो नेगेटिव बचेगा तो सिर्फ ये ज्विटर आयन जो है उसमें सिर्फ नेगेटिव बचा है, वो ज्विटर आयन नहीं रहा और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो गया। 7 से कम होगी तो नेगेटिव की तरफ मूव हो गया, ओके। बट आई एम नॉट सेइंग कि 7 ही होती है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो पीएच रेंज हम बात कर रहे हैं ये 7 ही होती है, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड, ओके। ये 7 से ज्यादा पे भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ सकता है, 7 से कम पे भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ सकता है, क्लियर? चलो, so that's all about this part, so I'm going to rub that, okay। So next heading is structure of protein, structure of protein, okay।
So it have a different structure. It have a primary structure, secondary structure, tertiary structure. Okay. So number one is primary structure. Okay, primary structure. So it refers to the sequence in which, okay, in which various amino acids are linked to the one and another, okay, one and another in a protein, okay. It tells us the covalent, okay, bonding, okay, and disulfide bridge of protein, okay. It tells us the covalent structure and covalent structure, not and, covalent structure, including the disulfide bridge of proteins, okay. So for example, hemoglobin, right, is the molecule present in the blood, okay. Hanji, hemoglobin is a molecule present in the blood that carries oxygen, okay, consists of 574 amino acid units, okay. So hemoglobin is HB, is molecule in blood, okay, that carries oxygen, okay, consists of 574 amino acid units, okay. सो चेंज, अगर हम एक भी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके या हर बॉडी का जो अमीनो एसिड है वो मतलब उसकी कोडिंग हो रखी है, अगर आप एक भी, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन चेंज कर देते हो तो क्या हो जाता है, उसको बीमारी लग जाती है, इसका नाम है सिकल सेल अनीमिया, ओके। हाँ जी बेटा, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, चेंजिंग जस्ट अ सिंगल, ओके, चेंजिंग जस्ट अ सिंगल अमीनो एसिड
amino acid in the sequence result in the defective hemoglobin. Result in the defective hemoglobin. Okay? Yes, sir. हाँ जी. And patient suffering sickle cell anemia. Okay? Defective hemoglobin found in patient suffering from sickle SICKELL cell anemia ANAEMIA. प्लीज स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है बेटा. सिकल सेल अनीमिया. ओके बेटा. तो अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज द हीमोग्लोबिन ऑफ नॉर्मल पर्सन. ओके. तो मान लो उसमें वेलिन आता है पहले, फिर हिस्टिडीन आता है, फिर ल्यूसीन आता है, फिर थाइमीन आता है, प्रोलीन एंड दिस. ओके. ये नॉर्मल बंदे का सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन का. अगर मैं डिफेक्टिव की बात करूं तो डिफेक्टिव में ठीक है, वेलिन के साथ हिस्टिडीन आ गया, ल्यूसीन आ गया, प्रो आ गया, वेल आ गया, GLU ये आ गया. बताओ क्या हुआ. ओके. LEU ल्यू. उसके बाद थायमीन जो था, ओके, वो क्या हो गया, वो बीच में से मिस हो गया. ठीक है. तो इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो गया, वो एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो गया है. ओके. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके. नंबर 2 हम पढ़ेंगे अब. सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं. इसमें ए पार्ट होता है अल्फा हेलिक्स. ओके. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके. हेलिक्स आपको पता ना कैसा होता है. ओके. तो बेसिकली क्या होता है, इट इज जस्ट अ कॉइल, जस्ट लाइक अ कॉइल. वन. इस कॉइल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर हेलिक स्ट्रक्चर. ओके. और इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड भी हैं और यहाँ पे NH बॉन्ड भी हैं. ये सीधा जुड़े होंगे. ओके बेटा. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं NH की बात करूं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी होंगे, ये जुड़े हुए. एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा खुला बनाते हैं सो दैट आपको इजी हो जाए समझने के लिए. ओके. ओके. बस मैंने 2 ही बनाई हैं इस बार. ओके. सी व्हाट विल हैपन, मान लो यहां पे था मेरे पास C डबल बॉन्ड O, तो सेम मेरे पास यहां पे होगा NH. तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. सिमिलरली कहीं ना कहीं पे यहां NH भी होगा. ओके. जो कि इस ये फ्रंट में है. ठीक है. तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. सिमिलरली ऊपर भी सेम केस होगा, C डबल बॉन्ड O, तो मे भी यहां पे कोई NH होगा जो बॉन्डिंग कर लेगा. ओके बेटा. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ओके, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं,
that will maintain the helical coil. Okay, so the hydrogen bonding, the hydrogen bonding between C double bond O and NH molecule in the peptide chain, okay, coils up, okay, coils up into the spiral structure, into the spiral structure called right-handed alpha helix structure. Okay, हाँ जी, alpha helix structure. So most of the fibrous proteins, okay, like uh, beta alpha carotene, like alpha carotene in here, अपने बालों में जो होता है, nails, ओके, हाँ जी, ओके, एंड मायोसिन, क्या? MYOSINE, मायोसिन in muscles, okay, in muscles have alpha helix structure. Yes, sir. Okay, beta. So this thing you have to remember about the alpha helical structure, and this is the one of the most asked question. Okay, ये पूछा जाता है बेटा पेपर में. प्राइमरी स्ट्रक्चर कम ही पूछते हैं. हाँ, आपको बताइए पूछ लेंगे कौन सी बीमारी हो जाती है ना, एंड ऑल, बट यहां पे ये क्वेश्चन आम पूछा जाता है. ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, तो और सेकंड इसका जो ए पार्ट था, सेकंड एक स्ट्रक्चर और होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. ओके, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, वो भी सेम होता है. ओके, तो ज्यादा फर्क नहीं होता उसके अंदर. सॉरी, मैंने ये गलत ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इधर को, देन हैव अ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, then carbon double bond oxygen, then I have a nitrogen single bond hydrogen, and so on. Okay, this will carry number of times. Similar एक और sheet होगी, that is beta flat plated sheets. Okay, so where we have H, and I will write, definitely I will write N. Okay, C double bond O, NH, C double bond O, NH, okay, and so on. So you can see in these plates there is a hydrogen bonding. There is a hydrogen bonding which maintain these sheets. So we will call this beta flat sheet, okay, or beta plated sheet structure. Okay, so this is the secondary structure of your
protein. Okay. Now we'll talk about the tertiary structure. Now we'll talk about the tertiary structure. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हमने दिखाई. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या तो हमारा स्ट्रक्चर कॉइल अप हो गया. ओके कौन सा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइल अप हो जाता है तो उसको बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर शीट फॉर्म में फ्लैट हो जाता है, ओके तो फ्लैट को हम शीट बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. ओके बेटा, इन दोनों केस के अंदर हमने इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करा है. क्लियर? नेक्स्ट इज tertiary structure. So number 3 is tertiary structure. TER, tertiary structure. Okay. So basically अगर देखा जाए tertiary means 3-dimensional structure. Okay. So it refer to 3-dimensional structure of protein. Okay. It arises due to folding. Okay, due to folding and superimposition of various secondary structures. Various secondary structures. Okay, structural कर लेते हैं elements to give the entire molecule okay in a spherical sheet. In a spherical sheet. Okay beta, so basically it is a 3-dimensional structure. Okay, ओके सो हर एक प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो एक अलग है. दैट इज नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हर एक प्रोटीन का सीक्वेंस अलग होगा, इसलिए जो भी वो अपनी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है प्रोटीन वो डिफरेंट होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन. ओके, दैट इज नोन एज नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन. ओके बेटा, नाउ अभी मैं आपको एक चीज पढ़ने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? बुक खोलना है, उसको पढ़ना है. दैट इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन. बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन. ओके, तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन? हाँ जी. So basically it have a two major important, okay, number one structural material, okay, अपनी ह्यूमन बॉडी है जो और एनिमल बॉडीज हैं जितनी भी, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो इट इज आवर स्ट्रक्चरल मटेरियल. प्रोटीन इज आवर स्ट्रक्चरल material. All the human and plants bodies are made up of protein, not plants, sorry, that is from cellulose,
I'm talking about animals. Okay, and all these are made up of proteins. Okay, number 2, metabolic regulator. Metabolic regulator. Okay, that means it regulate all the biological processes. It regulates all the biological processes. Okay, okay, so we will generally call it as enzyme. Okay, we will generally call it as enzymes. Okay, clear?